Good evening, students. This is the class 12th. This is the chemistry magical classroom by RS HOD Chemistry. Students, in previous video, I have uploaded that the preparation process of amines and the different properties of amines. So in this chapter, the left portion, that is the methods of preparation of diazonium salt. Okay, so before starting the class, I want to say that you always think positive. If you think positive, then your body create a positive energy. If you have the positive energy, then you can do all things in all direction. So you never think the negative thing, means अपने अंदर कभी आप नकारात्मक की भावना ना आने दीजिए, क्योंकि जहाँ से नकारात्मक सोच होती है वहीं आपके बॉडी में नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है, और नेगेटिव एनर्जी कभी भी किसी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है, वह हमेशा उसको डाउनफॉल में ले जाती है. सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, be happy and do all things carefully. Okay, so students, now we start the class, that is the preparation of diazonium salt. Diazonium salt, actually diazonium salt is prepared with the help of primary aromatic amines. Actually students, the methods are the process by which we convert the primary amine to the diazonium salt. This process is known as the diazotization reaction. So students, you know that NaNO2 plus HCl, if reacts with each other, then Na reacts Cl, then form NaCl, and this is HNO2. HNO2 is written as HONO. Students, if we take the aromatic amine, if treated with NaNO3 and HCl at the 273 Kelvin, then the diazonium salt Ar, N, listen, N and N, this and this Cl, this is Cl, this form, and Na reacts to the Cl, this NaCl and water molecule. So the reaction of converting aromatic primary amine to diazonium salt is called diazotization. अब suppose that हम सोडियम नाइट्राइड को HCl के साथ अगर ट्रीट करेंगे, तभी आपने कहा कि NaCl NaCl बनाएगा, HNO2 को हम HONO लिख सकते हैं. अब अगर हम एरोमेटिक अमाइन को यानी एनिलीन को अगर NaNO2 और HCl के साथ 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये आपका N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये आपका बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. स्टूडेंट्स Na एक Cl से रिएक्ट करके NaCl बनाएगा. अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा. तो ये आपका प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है. इसको NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर जब ट्रीट करेंगे, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ओके, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि नेम द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द 1 degree aromatic amine to the diazonium salt, then this process is known as the diazotization reaction, and this process is used to prepare the benzene diazonium chloride. The name of this compound, that is the benzene
diazonium chloride. This is benzene diazonium chloride. Maybe all of you understand that. Okay. Now we discuss, students, the chemical properties of diazonium salt. Diazonium salt इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रिएक्शन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, कि आपसे 2-3 तरह क्वेश्चन आएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन एल्डेन रिएक्ट्स विद द NaNO2 and HCl at 273 to 278 Kelvin, then this reaction you will write. Otherwise many reactions will ask in your examination related to the chemical properties of diazonium salts. So students, now we discuss the chemical properties of diazonium salts. So students, diazonium salt represent the two type of properties, yani two type of chemical properties shows. The students, the first, that is the reaction involving displacement of diazo group. पहला ये जो डाइएजो ग्रुप है इसको रिप्लेस करके रिएक्शन देता है, और सेकंड है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप. So there are the two type of chemical properties or chemical reactions involved in the diazonium salt. The first, that is reaction involving displacement of diazonium group, and the second, reaction involving retention of diazonium group. Maybe all of you understand. Now students, we discuss the first property, that is the reaction involving displacement of diazo group. So we discuss, maybe all of you understand this. So students, now we discuss the next topic, means the chemical properties that is related to, students. So all of you look here and try to understand. Students, now we discuss the property that is related to the chemical properties. The first properties we want to discuss, that is the reaction involving displacement of diazo group. अब diazo group students क्या होगा, जो बेंजीन रिंग के टॉप पर N2Cl लगा है वो आपका diazo group होता है. तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन, यानी जो आपका ये है, इसमें सबसे पहला ये जो फर्स्ट ए पार्ट है, ए पार्ट का फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप. इसका स्टूडेंट्स फर्स्ट रिएक्शन आपका होगा, दैट इज द रिप्लेसमेंट बाय, ए पार्ट का फर्स्ट रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय, 1 minute, there is some problem with board because it may be wet. So the A part, the first reaction, that is replacement 1 minute, replacement by OH group. Students, now discuss replacement by OH group. 1 minute, just wait. There is some problem with marker, so just 1 minute. I'll have to wait, and after this I will discuss this topic. Students, listen carefully and try to understand. The first point, replacement by OH group. I'll have to look here and try to understand. Replacement by OH group. Listen, reaction involving displacement of diazonium group में फर्स्ट पॉइंट आपका है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप. अब स्टूडेंट्स, अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वेपर के साथ, यानी वाटर वेपर के साथ ट्रीट करें, या वाटर के साथ 283 केल्विन पर हीट करें, तो देखिए होगा क्या स्टूडेंट्स. लिसन केयरफुली. You know that this is the benzene ring, and here we write the N2 positive Cl negative. This is the benzene diazonium chloride. आपने कहा कि इसको हम वाटर के साथ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वार्म करते हैं.
इसको जब वाटर के साथ वार्म करेंगे, हीट करके, हमने बताया कि टेम्परेचर जनरली नियर अबाउट 283 केल्विन ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ध्यान दीजिए, आप रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाई एजो ग्रुप, यानी ये डाई एजो ग्रुप का क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। अब कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये वाटर आप जानते होंगे डिसोसिएट्स होकर के H आयन और OH बनाता है, तो जो H होगा वो Cl से रिएक्ट करके स्टूडेंट्स क्या बना देगा, HCl प्लस ये जो नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल गई। अब स्टूडेंट्स बचा यहाँ पर क्या, जरा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर से H निकल गया, Cl हो गया, यहाँ बचा OH, और जहां से ये पूरा पोर्शन हटा यहीं पर क्या लग जाएगी स्टूडेंट्स, OH। तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH लग गया, सो द कंपाउंड फॉर्म दैट इज फिनॉल। ठीक, तो दिस रिएक्शन शोज द रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाई एजो ग्रुप। ये आपका डाई एजो ग्रुप है, जब आप वाटर के साथ वार्म करोगे इसको 283 केल्विन पर, तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसका, ये डाई एजो ग्रुप का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाटर के द्वारा, क्योंकि वाटर स्टूडेंट्स डिसोसिएट्स किस में होता है, H पॉजिटिव में और किस में, OH नेगेटिव में। तो ये HCl से रिएक्ट करके क्या कर लिया, HCl बना दिया, ये नाइट्रोजन गैस बन गई, और OH जब ये पूरा पोर्शन हट जाएगा तो OH यहीं पर क्या हो गया, ऐड हो गया, तो द फॉर्म दैट इज फिनॉल। ओके, now we discuss the second property, second point, that is displacement by hydrogen are the second point. Now we discuss that is the second point we want to discuss, that is the replacement by hydrogen or 1 minute, replacement by hydrogen. The second point, that is replacement by hydrogen. Listen students, the replacement of hydrogen, actually this is known as the diminution, or DEAMINATION, diminution, DEAMINATION। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम को लाइट, जरा सुनिए, दिस इज द बेंजीन डाई एजोनियम को लाइट मींस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर स्टूडेंट्स हम बेंजीन डाई एजोनियम को लाइट को H3PO2 और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, कॉपर के साथ, यानी किसके साथ, H3PO2, ठीक है, और वाटर के साथ हीट करें, मींस प्लस वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ Cu। जरा ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो ये आपका नाइट्रोजन, ध्यान दीजिए, ये आपका N2 जो है ये किसके रूप में लिबरेट हो गया, नाइट्रोजन गैस के रूप में स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया और ये बन जाएगा H3PO3। लिसन, ये नाइट्रोजन गैस हुआ, एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या बन गया, H3PO3 बन गया। अब स्टूडेंट्स क्या बना, H और Cl रिएक्ट करके क्या बना देगा, HCl, और प्रोडक्ट क्या बन गया स्टूडेंट्स, HCl। अब जरा सुनिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करके HCl बचा, 1 हाइड्रोजन इसका बचा, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप जानते होंगे, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन मीन्स आप जानते होंगे, बेंजीन में जहां जहां टर्न होता है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये आपका ऐड हुआ, और जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहीं पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, 1 हाइड्रोजन इस Cl से रिएक्ट करके HCl बना दिया, ये नाइट्रोजन गैस बन गई, और H3PO2 में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्या बन गया, H3PO3। तो दिस रिएक्शन इज द रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन, और दिस रिएक्शन इज नोन एज diminution. This reaction is known as the diminution. So this is the second reaction which is related to the reaction involving displacement of diazonium group. ठीक है, अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। The third reaction that related to the involving of diazo group, the third, that is the replacement by chlorine or bromine. Listen,
रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। स्टूडेंट्स, जब हम स्टूडेंट्स HCl H-बियास रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 के प्रेजेंस में, लिसन, this is the benzene diazonium chloride. We write the further, this is the benzene diazonium chloride. If this reacts with HCl in the presence of Cu2Cl2, listen, Cu2Cl2 के प्रेजेंस में अगर इसको हम हीट करते हैं HCl के साथ तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जरा बहुत ध्यान समझिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये N2 जो है किसके रूप में निकल गया, नाइट्रोजन गैस के रूप में स्टूडेंट्स निकल जाएगा। ठीक, अब जरा सुनिए, ये आपका नाइट्रोजन गैस बन गई। अब स्टूडेंट्स क्या होना है, इसके साथ ये क्लोरोबेंजीन, ध्यान दीजिएगा, HCl से रिएक्ट किया, नाइट्रोजन गैस हुई, ये Cl जो है इसके साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट आपका HCl, और ये क्लोरीन, जब ये HCl इसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, तो ये क्लोरीन का रिप्लेस नहीं होता, इसमें ऐड होगा। तो द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म, दैट इज, दिस इज द बेंजीन रिंग, हियर द बेंजीन रिंग एंड हियर दिस इज Cl, सो द प्रोडक्ट दैट इज द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब अगर HCl की जगह पे आप स्टूडेंट्स HBr का रिएक्शन करा देंगे, तो HBr का रिएक्शन कर देंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो हाउ वी राइट, सपोज दैट वी राइट दिस इज द बेंजीन डाइazonium chloride and 2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सेम दैट द Cu2Cl2 के प्रेजेंस में अगर हम यहाँ HBr का करा देंगे तो ये प्रोडक्ट हट करके यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, मीन्स द ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म। सो दिस Br plus N2, this is the bromobenzene. So this reaction is replacement by the chlorine or bromine. So this reaction is also known as the Sandmeyer reaction. This reaction is also known as Sandmeyer reaction. So all these reactions, students, are involved, are related to the reaction involving displacement of diazo group. यानी इन सब में से diazo group क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट बाय द आई ग्रुप, अब हम आई के द्वारा रिप्लेस कराएंगे, रिप्लेसमेंट बाय आई ग्रुप। अब देखो, अगर स्टूडेंट्स आई से कराओगे तो सेम ही रिएक्शंस क्या होगा, रिप्लेसमेंट बाय आई ग्रुप अगर हम कराते हैं तो ये बेंजीन डाइazonium chloride को स्टूडेंट्स हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कर देंगे। किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम वही प्रोसेस, ये K जो है CS रिएक्ट करके क्या बना लेगा, KCl बन गया। तो आपका क्या बन गया, KCl प्लस ये क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल गई, और ये आयोडीन यहीं पर ऐड हो गया। तो ये बेंजीन रिंग ऊपर आई हो गया, जिसको आप कहेंगे आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, रिप्लेसमेंट बाय आई, ठीक है, यानी किसके द्वारा रिप्लेसमेंट हो रहा, आई के द्वारा, ठीक है। अब इसी तरह फ्लोरीन के द्वारा हो सकता है, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। अगर हम इसको नेक्स्ट आप करें, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, अगर स्टूडेंट्स हम इसको फ्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो फ्लोरीन में देखिए HbF4 से हम रिएक्शन कराएंगे। सेम यही रिएक्शन आपका बेंजीन डाइazonium chloride का हम स्टूडेंट्स किससे कराएंगे, HbF4। And you have to tell me what is the name of HbF4? Students, the name of HbF4, the compound that is fluoroboric acid, that is fluoroboric acid. This is fluoroboric acid. अब स्टूडेंट्स, पहले अगर इसको इसके साथ हम ट्रीट करते हैं तो स्टूडेंट्स बनेगा क्या, पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये एडिशन रिएक्शन दे देगा। एडिशन मतलब क्या करेगा, यहां से सबसे पहले H जो आपका होगा ये Cl से रिएक्ट करके ऑलरेडी निकल जाएगा, HCl बन गया। अब HCl अगर यहां से निकल गया स्टूडेंट्स तो क्या बचा, यहां पर आपका बना ये बेंजीन रिंग स्टूडेंट्स है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपका बचा क्या, N2 पॉजिटिव। अब देखिए ये H निकल गया, बचा क्या, BF4, यहां पर आपका BF4 नेगेटिव लग गया। अब स्टूडेंट्स ये फर्दर रिएक्ट करेगा। अब इसको अगर फर्दर इसको रिएक्ट करते मींस हीट कराना, अगर इसको हम फर्दर हीट करा देंगे तो हीट कराने के बाद क्या होगा, इसमें फ्लोरीन लग जाएगा। इसको अगर फर्दर हम यहाँ पर हीट कर देते हैं, हीट, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, यहां से BF3 निकल जाएगा, और जो एक फ्लोरीन बचेगा यहीं पर ऐड हो गया। तो मींस दिस प्रोडक्ट, दिस इज द फ्लोरोबेंजीन, दिस इज द फ्लोरोबेंजीन,
बेंजीन इज फॉर्म। होगा क्या, ये नाइट्रोजन गैस निकल गया, ये BF3 निकल जाएगा, BF4 पर 1 नेगेटिव है तो BF4 निकल जाएगा, और F की जहां पर वो था हाइड्रोजन वहां पर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन हो गया। अब रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड, अगर हम यही रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड से देखें, रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड यानी Cn। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं इसका, तो किसी भी CuCN KCN किसी से करा लो, CuCN ऑब्लिक KCN, अब क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगी, क्योंकि आप जानते होंगे ये इसको रिप्लेस करता है। तो रिप्लेस क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये नाइट्रोजन गैस निकल गई, अगर CU करेंगे CuCl KCl से कराएंगे KCl बन गया, और नाइट्रोजन निकल गई, तो सबसे पहले क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन निकल गई, K और Cl रिएक्ट करके क्या बनाएगा, KCl, और ये आपका यहीं पर बेंजीन के ऊपर आपका क्या लग गया, Cn। आप जानते होंगे अगर ये Cn लग गया, इसको हम कहेंगे साइनोबेंजीन। क्या कहेंगे इसको, साइनोबेंजीन। अब स्टूडेंट्स आप जानते होंगे जो साइनो कंपाउंड होता है, अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस फर्दर करा दें, अगर मान लिया आपको कभी कभी आगे पूछ दिया जाता है रिएक्शन की व्हाट हैपेंड ऑन द हाइड्रोलाइसिस, तो आप जानते होंगे साइनाइड के जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये आपका बेंजीन रिंग के ऊपर आपका क्या लग जाएगा, COOH। दिस इज नोन एज द बेंजोइक एसिड, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो रिप्लेसमेंट एज द डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम ग्रुप इसमें भी आपका क्या रहा, रिप्लेस हो रहा है, किसके द्वारा, साइनाइड के द्वारा। अब अगर सेम इसी तरह रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप अगर देख ले, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप NO2, अगर स्टूडेंट्स हम नाइट्रो ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रो में देखिए दो स्टेप, ध्यान दीजिएगा। पहले नाइट्रो अगर हम कराते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन जो भी आपने कराया था HbF4, सबसे पहले वही कराएंगे HbF4 से। सबसे पहले स्टूडेंट्स में क्या होगा रिएक्शन, HbF4। अभी आपने रिएक्शन कराया था कि जब HbF4 में कराएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, H और Cl रिएक्ट करके क्या बना रहता है, HCl, अब जो बचता है वो यही ऐड हो जाता है। तो बचा क्या स्टूडेंट्स, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर आपका बचा N2 पॉजिटिव, और क्या बचा भाई BF4, और इस पर क्या हो गया, नेगेटिव लग गया। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसका NaNO2 फर्दर, इसका हम किसे कराएंगे, NaNO2 Cu के प्रेजेंस में इसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, NaBF4 बन जाएगा, NaBF4, और क्या बचा N2 यानी नाइट्रोजन गैस निकल गई स्टूडेंट्स। अब क्या बचा भाई, यहां पर NO2 बचा, तो ये आपका बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, NO2, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोबेंजीन। तो आप देख रहे होंगे इसमें भी ये डाइजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ये भी डाइजोनियम ग्रुप का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इस तरह कोई भी ग्रुप अगर इसको रिप्लेस करेगा तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व्स होते हैं। ठीक, तो अब तक हमने जितना रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे रिएक्शन थे रिप्लेसमेंट बाय डाइएजोनियम ग्रुप। जो डाइएजो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है उसमें सारे में रिप्लेस हो रहा था, चाहे जिससे आपने कराया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट इसका स्टूडेंट्स है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। सो वी डिस्कस दिस पार्ट यानी बी पार्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इज द रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, बी अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो। So all of you see this video carefully and try to write the reaction self. आप समझिए, समझ करके अपने रिएक्शन, इस रिएक्शंस को खुद राइट करने का प्रैक्टिस करिए, फिर आप देखेंगे कि ये रिएक्शन आपको बहुत ही इजी फील होगा, बहुत आसानी से आप इसको कर ले जाओगे। So all of you take care. If you are not subscribed my channel, then you subscribe my channel, because after few days, means when all the chapters will be completed, then we will give a preparation of board. So it is too helpful. We start the super 60 classes, means this is the few days classes. It is good for your board preparation and it is help to gain a good marks in board examination. So if you are not subscribed my channel, then you subscribe and
help to other and send to other and share to other to subscribe for all those students who need to this type video. Means the students who not know about what is the chemistry, this video is too helpful for those type students. So all of you take care. Goodbye. Bye bye students.